الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ سب کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الزلزال، سورہ زلزال۔ یہ قرآن کی 99ویں سورہ ہے، یعنی 99ویں سورہ ہے، 99۔ اس آیت کے اندر کل 8 آیت ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ آپ سب کے سامنے مختصر سا رکھے، پورے آیت کی ترجمہ کر کے تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کے پہلی آیت میں کا ترجمہ یہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا ایک زلزلے کی وجہ سے، زمین کو ایک زلزلہ ہلا دے گا اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے چھپے ہیں زمین کے اندر اس سب کو زمین الٹی کر کے باہر پھینک دے گی، اور اس کے بعد انسان کہنے لگتے ہیں کہ اس زمین کو یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد زمین اپنی اپنی باتیں بیان کرنا شروع کر دے گی، اپنے باتیں اللہ کے حکم سے اپنے باتیں بیان کرے گی، اور اس کے بعد انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے اعمال کے برابر الگ الگ ٹیم ہو کر نکلیں گے اور وہ ان کے اعمال کو وہاں دیکھ لیں گے، ان کے اعمال وہاں دکھا دیا جائے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر نیک کی ہوگی وہ اسے وہاں دیکھ لے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ ہے اس سورت کی ترجمہ، اور آئیے تفسیر بھی آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، یعنی قیامت کے دن پہلا سور پھونکا جاتا ہے، یا ہم سب جانتے ہیں وہ پھونکنے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، وہ پہلا سور پھونکیں گے، زمین ہل جائے گی۔ ایک زلزلہ کا معنی ہے کہ کسی چیز کو ہلا دینا۔ زمین ایک زور کے وجہ سے، ایک زلزلے کی وجہ سے زمین کو ہلا دیا جائے گا، جیسے کوئی چادر پہ جتنے بہت ساری چیزیں لگی ہو، اس چیزوں کو ہمیں پکڑ کر ایک زور سے کھینچیں گے تو اس کے جو بھی چادر ہے اس کے اوپر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب الگ الگ پڑیں گے، اور اسی طرح سے جب سور پھونکنے کے بعد زمین کو ایک زلزلہ لائے گی تو زمین کے جدھر بھی چیزیں ہیں زمین ادھر ادھر ہو جا کے جیسا پڑے ویسا ہو جائے گی زمین، اور زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ باہر پڑیں گے، جیسے زمین کے اندر خزانے ہو خزانے باہر آئیں گے، زمین کے اندر کوئی چیزیں ہو چیزیں باہر آئیں گے، اور بہت سارے چیزیں، اور زمین کے اندر دفنائے گی ہوئے جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی لوگ گزر چکے تھے ان سب کو زمین میں ہی گاڑا جاتا، زمین میں ہی ان کی دفن ہوتی، مسلمان کو زمین میں ہی دفن کرتے، جتنے بھی مسلمان ہو کون ہو بھی، جتنے بھی زمین کے اندر دفن کی ہو مردوں کو زمین کے اندر سے باہر نکالا جائے گا، اور اس وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور تو پھونکنے کے بعد یہ سب کیفیت ہوگی، یہ سب حالت ہوگی کہ پہلے زمین ہل جائے گی اور زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ چیزیں الگ ہو جائیں گی، وہ چیزیں باہر آئیں گی، اور اس کے بعد انسان کہنے لگتا ہے، دوسرا سور پھونکنے کے بعد انسان کو ایک ایک کر کے انسان اٹھتے،
जैसे पौधा, जो छोटा सा चीज, जो पौधा है, उस पौधे को पैदा होने के वक्त पौधा छोटा 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 करके वो बाहर बाहर पड़ता। एक पौधा जब बढ़ने लगता है, जरा 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 करके पौधा बढ़ने लगता है। उसी तरह से इंसान भी एक 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 करके आदम से लेकर आखिरी इंसान तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक वैसा ही बाहर पड़ेंगे। और ज़मीन रब के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन बात करने लगती है। हमें समझते हैं कि बात करने, ज़मीन को एक मुँह आको बात करती है, कैसे बात करती है अल्लाह ताला जानता है। ज़मीन को अल्लाह का हुक्म होता है कि ज़मीन को ऐसा हला देता है, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन हल जाती है, उसके अंदर के मारा बाहर फेंकते हैं, अल्लाह का हुक्म है सब। और जब अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है कि इंसान क्या क्या अमल किया क्या नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ज़मीन को कई को बोलो कहता है, तो ज़मीन को या गवाह रखे अल्लाह ताला। क्या हम देखो, अब किसी तो झगड़ा होती है तो हमें नहीं करे तो हमें झूठा गवाही देते हैं। अल्लाह ताला ज़मीन को गवाही एक रखे, अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है, लेकिन ज़मीन को इसलिए बोलने का हुक्म दिया कि गवाही अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ज़मीन को गवाह रखकर इंसान जो भी दुनिया में करे उसके बारे में बोलती। ज़मीन खबरें सुनाती है, बोल तो मैं ज़मीन हूँ, मेरे ऊपर खेता डालते, मेरे ऊपर क्या क्या करते, वो ज़मीन बोलती नहीं, ज़मीन की तारीफ ज़मीन कर लेती नहीं। ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग जिंदगी गुजरे हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में जिंदगी गुजारे हैं ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन बोलती फलाना इंसान है, फलाना रोज़ है, फलानी बुरी काम के लिए निकला, फलाना इंसान इस ज़मीन को जो शाब रखने को हराम कमाई कमाया, फलाना इंसान इस जगह से निकल कर एक मदारिस को जाया, फलाना इंसान इस ज़मीन से निकल कर अच्छे नेक काम के लिए जाया, फलाना इंसान फलाना अच्छे अच्छे काम करने जाया, फलाना इंसान इसी ज़मीन से बुरे काम जाया। सब खबर अल्लाह के हुक्म से ज़मीन बोलने लगती है, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन सब बोलने लगती है। और उसके बाद अब हमें का तो निकलते हैं, हमें का तो जाते हैं 7th क्लास के तरफ बैठता, 8th क्लास है, अलग अलग क्लास तक तरफ जाते। वैसे अच्छे सारे इंसान भी जैसे नेकोकार का एक रास्ता, शहीद जो भी अल्लाह के राह में शहीद हुए उल्लाह का एक रास्ता, उल्लाह की एक टीम है, रास्ता बोलकर टीम, और जो भी गुनह करे उल्लाह का टीम, जो भी खराब काम किए किसके किसके अमल पकड़कर कौन क्या किए कौन किया, सबके अमल पकड़कर नेक काम करे, सब भी अलग अलग टीम होकर अलग अलग टीम से निकलेंगे। किधर को निकलेंगे? आयत में तर्जुमे सुने, निकलेंगे हशर का मैदान का निकलेंगे। हशर का मैदान में तो अल्लाह ताला सबको कहीं को बिठा था, सबको क्या तो दिखाने के वास्ते हो, अल्लाह ताला तो इंसान के अमल को दिखाने के वास्ते हशर के मैदान रखा है। हशर के मैदान निकलते हैं, अल्लाह गुलाह को गुलाह जो करे इंसान गुनाह के अमल दिखाने के वास्ते अल्लाह ताला क्या क्या अमल किए कि वो दिखाता सबको भी, वो सब भी वह देखते, और सब भी दिखने के बाद वह ताज्जुब होते। क्या कि ताज्जुब कई को होते बोले तो उस वह दिखते। अभी अल्लाह ताला का दिखाता है तब बड़ा, इसमें एक जने हाथ मिलाए से भी दिखाता है, एक जने को सलाम करे से दिखाता है, एक छोटे बच्चों को रहम से साथ बात कर से दिखाता है अल्लाह ताला। अरे ये छोटे छोटे चीज़ा ना मैं भूल गई ये चीज़ें करूँ से भी, लेकिन ये इतने भी इतने बड़े दिखते हैं, इतने इसमें दिखाता है कि हम ये तुम समझता। वो आखिरी आयत फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, और जिसने भी जर्रा बराबर नेक की होगी वह उसे देख लेगा। जर्रा बराबर यानी चिमटी के बराबर, चिमटी के बराबर, थोड़ा बराबर, छोटे वजन के बराबर जिसने भी नेक की हो वो उसे वह देख लेगा, अल्लाह वह उसे दिखाएगा। और उसके बाद वमन यअमल, आखिरी आयत है वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, दर्रतिन शर्रन यरा, और जिसने भी जर्रा बराबर गुनाह की होगी वह उसे देख लेगा। वह वो आदमी भी ताज्जुब होने लगता है कि वो दिखले को किसी को मारता हो, किसी के हक में झूठ बोलता हो, किसी को क्या क्या कि लक़ब बुरे लक़ब से पुकारता हो, वो भी देखेगा आदमी। अरे छोटे छोटे गुनाह ना या कहीं को दिखाते हैं समझता, छोटे छोटे नेक कामों को भी वह समझता ये दिखाते हैं या बोल को, और छोटे छोटे गुनाहों को भी आदमी वह समझता, छोटे छोटे गुनाह को समझता। ये है सूरत की तफसीर, और ये सूरत की तर्जुमा और तफसीर के बाद आप लोगों से चंद बातें बोलकर इंशाअल्लाह मेरी छोटी सी तकरीर ख़त्म कर दूँगा।
हमें समझते हैं कि छोटे छोटे नेक कामा की वजह से हमें क्या भी मिल जाता नहीं। कहते छोटे छोटे कामा, छोटे छोटे नेक क्या कहते सो हिसाब क्या रहते नहीं, वो नहीं करे तो परवाह नहीं, वो समझते हैं हम लोग। वैसा नहीं, ये छोटे छोटे नेकिया, कहते छोटे छोटे नेकिया बोले तो किसी को सलाम करना, ये छोटी सी से छोटी सी बात है, सलाम वालेकुम कहते, ये छोटी चीज है। घर के अंदर दाखिल होने के वक्त छोटी सी सलाम करना। कोई बच्चा जाता है तो उसे रहम से देखना, उसे नहीं मारना, उसे गलती हो तो भी। और कौन मुसलमान भाई दिखता है तो उसके सामने मुस्कुरा कर बात करना। ये छोटी छोटी चीजें है, ये छोटी छोटी चीजें ना सलाम क्या करते ले, छोटी छोटी चीजें ना समझ लेते। बड़े आदमी को इज्जत देते नहीं है, बड़े आदमी इतना इज्जत नहीं है तो क्या होता नहीं। उन्होंने क्या मैं प्रोफेशनल में बड़ा बड़ा मैं क्या कि फलाना बड़ा नौकरी करने वाला है, बुढ़ा खेती करने वाला, बूढ़ा आदमी खेती करने वाला, इसे मैं एक सलाम करना, बूढ़े आदमी को इज्जत नहीं देना, वो इससे छोटे छोटे चीजें समझ कर हम छोड़ देते रहते हैं। हमें छोटे छोटे चीजें अभी छोटे छोटे अमला, छोटे छोटे नेकिया के छोटे छोटे कामा हो, नेक कामा और छोटे छोटे कामों को हमें छोटे ना बोल को हमें छोड़ना ना। और सच आखिरी आयत में का भी इसके बारे में 2-3 बातें बोलूंगा। और आखिरी आयत में हमें जर्रा बराबर भी गुनाह की होगा देख लेगा। जर्रा बराबर गुनाह बोले तो किसी को मजाक के वास्ते झूठ बोलना। कोई बड़े आदमी जाते हैं तो बुढ़ा जाता है दिखे रहे यार, कालागढ़ जाता है रे, उन्हें क्या कि मोटा जाता है रे, वो जाता है हंदा जाता है, उन गिरिया हंदा चलने से कोशिश को एक हंसदल हमें। ये छोटे छोटे गुने, ये छोटे छोटे गुने करते भी हम अल्लाह ताला क्या करता नहीं, कौन की गिर गया तो हंसे तो हम क्या करता नहीं कौन। ये छोटे छोटे नेकिया और ये छोटे छोटे गुने करने से अल्लाह ताला हमें पकड़ लेता। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में जन्नत और जहन्नम के बीच फर्क हो जाता है। छोटे छोटे गुने सब भी मिलकर एक पहाड़ के जैसा बन जाए को हम जहन्नम में जाने की वजह हो जाते हो। वैसे छोटे छोटे नेकिया भी हमें काम नहीं आते समझते, लेकिन छोटे छोटे नेकिया करने से वो नेकिया जम 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 कर एक पहाड़ के बराबर जमकर कल क़यामत के दिन जन्नत को ले आने का रास्ता भी बन सकता है वहाँ को। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, ये छोटे छोटे गुनाह इतना है, छोटे छोटे नेकियां इतना तो हमें कभी नहीं छोड़ना। इस आयत में क़यामत के बारे में बात होती है, आदमी के इस नेकिया के बारे में। एक तो ये आयत नाजिल होने से पहले कई को बोलते वो अदमे समझते थे, जमाना नुज़ुल ये आयत की नाजिलत जब निकले तो उस वक्त अदमे समझते थे। छोटे नेकिया करे तो वे आली रहता नहीं करे तो परवाह नहीं, छोटे गुने करता तो अल्लाह ताला पूछता नहीं समझते। उसके वास्ते अल्लाह ताला आयत नाजिल फरमाया। क़यामत के बाद अल्लाह ताला सबको उठाता, कई का तो अल्लाह ताला हमें कई को उठाता, कैसा उठाता देने मर जाने के बाद वो हड्डियाँ हो जाएगा भूल जाएगा हो जाते समझते। हमें जब पेट में माँ के पेट से अल्लाह ताला ये खतरे से पैदा किया तो अल्लाह ताला को बहुत आसान है बिल से पैदा करना। अल्लाह ताला बिल पैदा करके हमको दिखाएगा। छोटे छोटे नेकियां हो, छोटे छोटे नेकियां करने की तौफीक अता फरमाया। छोटे छोटे नेकियां बोलकर हमें नहीं छोड़ना, उसे कंपलसरी छोटे नेकी हो बड़ी नेकी हो उसे करना हमें। और छोटे छोटे गुनाह हमें जितने भी करें आज से तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला हमारे छोटे और सगीरे और कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमाए और आगे बढ़कर ये छोटे छोटे गुनाह नहीं करने की तौफीक अता फरमाए और भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी नेकी हो छोटी नेकी हो और भी करने की तौफीक अता फरमाए। इस छोटे छोटे बुराइयाँ छोटे छोटे गुनाहों से हमें बचाए। हमारे जितने भी भाई हो कौन भी हो इस गुनाह से है तो छोटे छोटे गुनाह हो बड़े गुनाह हो आज दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।